Hi, good evening. My name is Pratik Gupta and welcome back to my YouTube channel. सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का होने वाला है वो कोई टॉपिक नहीं है रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और द अदर। आज जो हम एक बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, इट्स ओनली अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज एंड अबाउट इट्स सिलेबस। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्यों डिसाइड किया। The reason is that alternatively, or you can say time to time, I am getting call from different students regarding different confusions about this examination. एज को लेके, सैलरी को लेके, कभी रिजर्वेशन को लेके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके अलग अलग तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं। उसके अलावा मान के चलिए क्या ऑप्शन सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि कई स्टूडेंट्स जो कई 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, they are not even aware about certain basic things about this examination and moreover about its syllabus। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि सिलेबस जो हमें यूपीएससी ने दिया है, whether that is only for the prelims and mains examination, that is also being given for the interview purpose also। तो है क्या, इस वीडियो में केवल और केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि यूपीएससी ने इस नोटिफिकेशन जो हर साल आती है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फेब, वो एग्जैक्टली उसमें जो बेसिक चीजें हैं एटलीस्ट वो क्या क्या आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मोरओवर बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, एज यू नो दैट currently I am associated with Unacademy, and from 10th of October I am going to start a comprehensive course for the economics, and that is going to be very very important for those candidates who are preparing for 2023 and 2024 examination. So if you want to learn economics in a very basic way, then you can simply join that course. The timings I will announce very soon, like in this week I will announce the timings also. 40 classes I'm going to take as a part of this particular batch. Okay, and every class will be in between 2 to 2.5 hours will be the duration of the class. Moreover, all the classes, whatever I'm going to do, I will provide some of the handouts from my side so that you will be able to cover all the things in a very comprehensive way, and you will be able to cover the current part also in a good way। ठीक है, plus all the whatever the topics we are going to discuss as a part of the comprehensive course, we will also discuss the previous year's question on those topics। okay, तो ये बस एक आपको बताना था कि this is what the announcement I need to do, and when you will join my course, please you can use my code called PGUPSC and you will be able to get 10% off over there। So let's start about the UPSC notification and moreover all about UPSC। देखिए UPSC के केस में now you people will start getting that all candidates, it doesn't matter there is a male, female or a transgender। ठीक है, पहले मान के चलिए in the old notification they hardly used to provide, or they were never providing this transgender part, they used to provide only male and female, but now you can say they've also started mentioning this particular thing, transgender। कहते हैं द रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड दिस नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन डिराइव्ड फ्रॉम दीज रूल्स। पॉइंट क्या है, पहली ही लाइन में लिखा होता है कि प्लीज रीड द रूल्स केयरफुली, एंड दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग, बट द पॉइंट इज आई एम टेलिंग यू, candidates are hardly listening to UPSC and they are hardly listening to their request also। वो क्या करते हैं, पड़ोसी के घर में कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, सिविल्स की तैयारी कर रहा है, या फिर पड़ोस में कोई बच्चा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, सीधा उठाया भैया हम तो आईएएस बनेंगे और तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। पर पॉइंट ये है कि देखिए ऐसे नहीं चलता है। चलता कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें जो जाननी होती है, हमें पता होनी चाहिए, और जब हमें पता नहीं होती है तो कई बार ऐसा देखने में आया कि जब सिलेक्शन हो जाता है and there are certain people who are being aspiring to become an IPS officer, or they want to have some sort of uniform job like in the Indian Railway protection, this forces you have, and the other areas where you need to have some sort of physical requirements are being there। तो कई बार देखने में यह आया कि जब स्टूडेंट्स उनको मीट नहीं कर पाते, देन दे आर बीइंग एबल टू लूज दैट पर्टिकुलर जॉब, एंड देन व्हाट हैपेंड, देयर ड्रीम्स आर शैटर्ड आई वुड से। तो इसलिए देखिए बहुत जरूरी होता है कि आपको चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या है। कई बार देखिए क्या होता है, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट्स वी आर हैविंग इन आवर बॉडी, जो देखिए हमें पता तो होता है कि वो डिफेक्ट है, बट उसका ये नहीं पता होता कि उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, बेनिफिट इन द सेंस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दी
जॉब इन द सिविल सर्विसेज। क्योंकि देखिए अलग अलग कैटेगरीज डिसेबिलिटी की यूपीएससी ने डिफाइन करके उनके हिसाब से रिजर्वेशन भी बता रखा है कि कितना रिजर्वेशन और या फिर वो डिसेबिलिटी उस कैटेगरी में आती है नहीं आती। कई बार लोगों को ये मानना होता है कि मैं डिसेबल हूं, आई विल बी एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन, दैट पर्टिकुलर रिजर्वेशन, और जब देखते हैं कि वो चीज यूपीएससी के नोटिफिकेशन में मेंशन होती ही नहीं है, या फिर जब बाद में वो अप्लाई कर देते हैं तो उनको पता लगता है कि यार यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमें मालूम नहीं होती कि इससे रिजर्वेशन मिल सकता है और हम उनको अवॉइड कर देते, छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यू नीड टू बेसिकली नो इन एंड आउट अबाउट एवरीथिंग अबाउट द नोटिफिकेशन गिवन बाय यूपीएससी। इसलिए यूपीएससी हमेशा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज भाइयों पढ़ लो, ठीक है, केयरफुली उसको ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में सब कुछ ठीक से पता हो। अब देखिए लोगों को ये तक नहीं मालूम होता है जो तैयारी कर रहे होते हैं कि कितनी सर्विसेज यू कैन एस्पायर फॉर फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर तक दैट वाज 19, बट नाउ यू कैन से 20 सर्विसेज आर देयर फॉर व्हिच द पर्सन कैन एस्पायर, एंड एज यू नो there is a new service called Indian Railway Management Services has been added, and moreover 150 more vacancies have been added, and that's why this year the number of vacancies are 1011। अब देखिए लिखने को 1011 है, बट मान के चलिए जब तक रिजल्ट आने की बारी आती है ये वैकेंसीज आराम से बढ़ के 1100 प्लस के आसपास हो जाएंगी। सो दिस ईयर इट वाज ए, और यू कैन से इट्स अ वेरी गुड चांस एंड द गोल्डन चांस फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड नंबर ऑफ सीट्स फॉर व्हिच दे कैन एस्पायर। तो मान के चलिए स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कितनी सर्विसेज हैं, उनके नाम क्या है, उनका रोल क्या है। कब पता लगता है? जब बेसिकली वो अपना मेंस के बाद या फिर मेंस का फॉर्म भरते हैं या फिर जब को इंटरव्यू देने जाते हैं, देन दे नीड टू नो अबाउट द सर्विसेज, देन दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये है क्या क्या। और कई स्टूडेंट तो इतने सरप्राइज होते कि अरे ये सर्विस भी है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। द पीपल आर बीइंग हैविंग दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी आल्सो। द पॉइंट इज व्हाट यू शुड नो। सो एटलीस्ट आई वुड से दोस पीपल आर बीइंग एस्पायरिंग and they have never read the notification of the UPSC, they should go at least once so that they will get to know about in and out about the examination process। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखिए जब आप बात करेंगे रिजर्वेशन की तो यूपीएससी में मान के चलिए 5 कैटेगरीज में रिजर्वेशन को डिवाइड किया है। द फर्स्ट ऑफ ऑल पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो 5 रिजर्वेशन। कितना कितना रिजर्वेशन है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए जब आती है बात एज की, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। ठीक है, देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड यू आर बीइंग 32 ईयर्स, और यहां पे मान के चलिए यूपीएससी जो बेंचमार्क लेता है दैट इज बेसिकली 1 अगस्त इज बीइंग टेकन एज अ बेंचमार्क, यानी कि जिस साल नोटिफिकेशन आई है दैट मीन्स इन 2022 if the notification is coming out, तो वो कहते हैं कि या तो इस पर्टिकुलर डेट तक आप 21 के हो जाएं या फिर आप 32 से कम है। दैट मीन्स योर एज हैज टू बी बिटवीन 21 to 32 ईयर्स। जैसे इस साल के लिए व्हाट दे हैव मेंशन दैट अ पर्सन इज बोर्न बिटवीन 2 अगस्त 1990 एंड 1 अगस्त 2021, यानी कि इसके बीच में बॉर्न हुआ है। दैट मीन्स फ्रॉम हियर यू विल काउंट 32 years and here you will count that you should at least complete 21 years, then you can apply। ठीक है, moreover you need to be at least graduate। अब मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, there's somebody who's been doing graduation, okay, और वो अपने फाइनल ईयर में है जब वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे आपने नोटिफिकेशन आई फरवरी में और आपने एग्जाम का फॉर्म भरा, ठीक है, और आपको पता है अप्रैल में आपके एग्जाम होने हैं, जून जुलाई में आपका रिजल्ट आना है और आपको डिग्री मिल जाएगी बाय द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी आपको डिग्री मिलेगी। ओके, अब देखिए पॉइंट क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब तक भी डिग्री मिलनी है कोई इशू नहीं है। तो देखिए यूपीएससी आपसे क्या कहता है कि वाइल फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है बट यू आर गोइंग टू अटेन इट बिफोर द डेट ऑफ यू कैन से द फाइनल सिलेक्शन, देन यू कैन अप्लाई एंड देन यू कैन सिंपली प्रोवाइड देयर रिजल्ट्स आर अवेटेड। और जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अब देखिए अगर आपने अप्लाई किया और आपके जून जुलाई अगस्त के आसपास आपको डिग्री मिलने वाली है,
तो आप इंटरव्यू में अपियर होंगे आप नवंबर दिसंबर में या जनवरी, जब भी यूपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, तो उस टाइम आपको बस केवल अपनी डिग्री लेके जानी होगी एंड देन यू कैन सिंपली प्रोवाइड इट टू देम। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय यूपीएससी। यस दैट इज ट्रू। तो उस केस में क्या, अगर इंटरव्यू वाले दिन भी आपके पास डिग्री नहीं है, देन यूपीएससी इज बीइंग वेरी कंफर्टेबल इन दैट एस्पेक्ट। वो आपसे क्या कहेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कम एंड सिंपली सबमिट द डिग्री लेटर। तो आप जाएंगे, डिग्री की कॉपी बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो मान के चलिए द ओनली थिंग इज व्हाट, दैट बिफोर ज्वाइनिंग you should complete your, you can say, the required qualification। तो रिजल्ट अवेटेड है, डिग्री नहीं मिली है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, इंटरव्यू तक जमा करिए, और अगर इंटरव्यू तक भी नहीं मिल पाती तो उसके बाद में कर दीजिए। दैट मीन्स बिफोर ज्वाइनिंग यू हैव टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So that is not an issue if you're not having the required qualification at the time of application, but before joining you need to be having the required qualification. That is what the UPSC is asking for. Getting? Second, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते then you will be able to get 5 years extra. That means 32 plus 5 equals to 37. That means you can apply till 37 years of age. OBC में 3 years extra will be given, you will get 35 years. एक्स सर्विसमैन अगर डिसेबल्ड हैं, यानी कि मान लीजिए कोई आर्म्ड फोर्सेस में था, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई कमी हो गई शरीर के अंदर, तो उस केस में यू विल गेट 3 years एक्स्ट्रा। बट अगर आपने आर्म्ड फोर्स में सर्व किया है, ठीक है, और आपने 5 साल एटलीस्ट सर्व किया है या उससे ज्यादा सर्व कर चुके हैं, देन यू विल बी एबल टू गेट अ 5 years रिलैक्सेशन। तो ध्यान रखिए, एक्स सर्विसमैन के केस में क्या है कि इफ यू आर एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल्ड देन यू विल गेट 3 years ऑफ रिलैक्सेशन, एंड इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड यू आर बेसिकली completed 5 years at least, then you will get 5 years of extension. That means till 37 years you can simply appear. And for the physically handicapped, you can say it is 10 years extra will be given and then you will be able to apply till 42. आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है, और आप जानते हैं द हाईएस्ट कट ऑफ यू हैव बीन गेटिंग फॉर जनरल और यू कैन से फॉर द ओबीसी, and then after that you will get a lower cutoff for the what you say for the PWD, SC ST or whatever categories we have. तो ध्यान रखिए, if you people belongs to any category then you should opt for it. आपको इसके लिए opt करना चाहिए, okay? Otherwise totally up to you। अगर आप opt नहीं करना चाहते हैं then that is totally fine with you, no problem, ठीक है। तो ये हुआ आपका एज रिलैक्सेशन की बात। अटेम्प्ट्स की बात करेंगे तो जनरल के हैं 6 attempts as you know। SC STs के लिए दैट मीन्स एज सुन एज यू विल अटेन द एज ऑफ 21 यू कैन स्टार्ट की दी अटेम्प्ट्स। आप अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 21 से अटेम्प्ट स्टार्ट करेंगे और 37 तक देते रहेंगे, सो दैट मीन्स यू हैव ऑलमोस्ट 16 अटेम्प्ट्स विथ यू। और जनरल केस में कितने हैं, दैट यू हैव 6 अटेम्प्ट्स। ओबीसी में यू हैव 9 अटेम्प्ट्स, ओके। देन इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकली हैंडीकैप, इफ यू टॉक अबाउट it is 9 attempt again. But if you're physically handicapped with the SC ST, then do remember you again have the unlimited attempts with you. तो attempts के लिए इन दो केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इट्स 6, 9 and 9, ठीक है। पर मैं आपको सीरियसली बताऊं, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द कंप्लीट अटेम्प्ट। नॉर्मली लोगों को समझ में आ जाता है 3-4 अटेम्प्ट्स के बाद या इवन लेस देन दैट कि दिस एग्जाम आई विल बी एबल टू क्लियर और नॉट। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, but the kind of structure of examination we have, the kind of syllabus we have for the examination, they're not being able to perform really well in that case, and they're being like, yeah, छोड़ देते, नहीं हो पा रहा है, let me do something else because that is not my cup of tea, and that is always better। क्योंकि देखिए 6 अटेम्प्ट हैं और अगर आपने यहाँ पे 7 साल लगा दिए, because normally people are being given 1 year for preparation and they start giving the attempt, तो उस केस में क्या होगा, 7 साल अगर लाइफ के निकल गए तो आप जानते हैं नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इन केस ऑफ आवर कंट्री इज अराउंड 63 years, और 7 साल अगर आपने इस एग्जाम को दे दिए तो मान के चलिए आपकी लाइफ का 1/9 हिस्सा तो एग्जाम के चक्कर में ही निकल गया। बाकी कुछ पार्ट बड़े होने में निकल गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से दी इफ यू टॉक अबाउट 21 years, ठीक है, तो 1/3 आपका बड़े होने में निकल गया, एंड देन दिस मच इज बीइंग गॉन फॉर द सिविल सर्विस। देन बचा क्या आपके पास, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइफ, एंड यू नो दिस थिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है 2-3 अटेम्प्ट के बाद दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, देन यू सपोज्ड टू सिंपली लीव एंड डू समथिंग एल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ रूल्स हैं। एग्जाम में अगर आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया,
then do remember if you get IAS or IAFS, you cannot reapply. Okay, and if you got IPS, then do remember you cannot reapply for the IPS again, but you can apply for the other services, because some candidates are being doing what कि उनको IPS मिल जाता है और उनको कैडर अच्छा नहीं मिल पाता, then what they are being doing, they are being simply applying again for the purpose of improvement in cadre. No, you can't do it now. Okay, so IPS में you cannot apply, you cannot reapply for IPS, but yes, you can apply for IAS, IPS or whatever is being given, but in case of IAS, IFS if it is being given, you cannot reapply. Getting that is what is being given by UPSC in the notification. Moreover, अब देखिए अगर रिजर्वेशन की बात करें यूपीएससी के अंदर, तो मान के चलिए अगर ओबीसी की बात करें, अदर बैकवर्ड कास्ट, इफ यू टॉक अबाउट, एंड दैट इज अ नॉन क्रीमी लेयर, द रिजर्वेशन इज 27% हियर. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितना है? इट इज 10%. एससीज के लिए 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5, एंड द हैंडीकैप कैटेगरी इज बेसिकली 4%. So if we do the total, it is around 63.5% reservation we have in the UPSC examination process. अब देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पे इनकम का, दैट इज योर 8 लाख रुपीज पर एनम. यानी कि नोटिफिकेशन आई थी 2022 फेब में. सो कैन आई से द नोटिफिकेशन वाज गिवन इन 2021-22 फाइनेंशियल ईयर. तो अगर आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं एंड यू नीड टू सी द इनकम लेवल फॉर द पर्टिकुलर ईयर, देन डू रिमेंबर UPSC will consider the income proof of 2020 and 21 for this particular purpose. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 63.5% रिजर्वेशन है और जो बाकी आपके लिए बचेगा दैट इज द 36.5% यू विल गेट फॉर जनरल कैटेगरी और यू कैन से फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी. मोरओवर देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू ऐड हियर. अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी से है एंड दैट पर्सन इज बेसिकली बीइंग एबल टू क्वालिफाई इन अ विद द जनरल कट ऑफ, मान लीजिए कोई टॉपर है and that is basically from the reserve category. Okay, so in this case what the UPSC will do, they will simply count his or her selection as a part of general, and then one more seat of the general will be given to whom? To the reserve category, because the reserve category person has been passed with the general cutoff. Getting, so in a way I'm telling you, though the reservation given by UPSC is 63.5%, but the reservation is even more than that. So it's normally around 64-65% reservation is there, and then normally you can say around 35% of the seats are being remaining left for whom? For the general category. तो देखिए अगर यहाँ पे कंपैरिजन भी करते हैं तो जनरल का अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जनरल कैटेगरी इज बेसिकली यू हैव अराउंड 36.5%, देन स्टिल यू कैन से दैट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द रिमेनिंग कैटेगरीज. Getting what I am saying? So that is a reservation thing that you have as a part of your UPSC examination for civil services. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. देखिए सैलरी की नॉर्मली लोग बात करते हैं तो मान के लिए 7th पे कमीशन के बाद जो आपका पे है दैट इज अराउंड 56,100 रुपीज व्हेन यू ज्वाइन, एंड दैट विल गो अप टू 2.5 लाख रुपीज व्हेन समबडी विल रीच टू द लेवल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. तो ये तो देखिए आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ता अभी, बिकॉज बाय दैट टाइम यू विल हैव सो मेनी पे कमीशन एंड द पे विल बी इवन मोर higher by that time. But the point is what currently people are being bothered about it, so that is what you're being going to get. ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं. अब बात करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन सिलेबस की. तो देखिए मैंने आपको बता दिया है अबाउट द रिजर्वेशन, अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अबाउट द इनकम दैट यू नीड, एंड मोर ओवर ऑल द बेसिक क्राइटेरिया कि कितनी सर्विसेज हैं एंड द अदर थिंग. ठीक है, सो अराउंड 20 सर्विसेज यू हैव फॉर विच यू पीपल कैन एस्पायर थ्रू दिस वन सिंगल एग्जामिनेशन. ठीक है, अब बात ये सिलेबस की जो सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर मेरी जर्नी है सिलेक्शन के लिए तो उस जर्नी का जो रास्ता है वो क्या है, दैट इज द सिलेबस. एंड अनलेस अंटिल यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज द रूट आई नीड टू टेक टू रीच टू द डेस्टिनेशन, देन यू विल नेवर बी एबल टू रीच टू अ डेस्टिनेशन. दैट इज व्हाट द सिलेबस इज ऑल अबाउट. तो सिलेबस को तो मान के चलिए हर कैंडिडेट को बहुत ही अच्छे से एक बार स्टडी करना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्या वाकई में मेरे लिए ठीक है या नहीं है, क्या मैं इसको प्रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. अगर आपको लगता है आप प्रिपेयर कर सकते हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अगर आपको लगता है कि नो दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है जो मुझे समझ में नहीं आते हैं, या बोरिंग है, या जो भी है XYZ आपको रीजन लगता है, तो हमेशा मान के चलिए कहा जाता है कि प्लीज इग्नोर इट एंड डू समथिंग एल्स. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब देखिए एग्जामिनेशन का प्रोसेस सबको बताया कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं. वन इज द GS पेपर एंड द सेकेंड इज योर C सेट.
You won't believe when I'm asking the full form of CSET to the students in the classroom, they're not even aware about the full form. That is Civil Service Aptitude Test you have. Okay? तो लोगों को full form तक नहीं मालूम होती है. They start preparing, they start taking coaching and they're not even aware about the full form. ये एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है. उनको बस ये होता है जीएस पढ़नी है, चलो कोचिंग ले लेते हैं. एंड दे बेसिकली ऑप्टेड फॉर द कोचिंग. अब देखिए है क्या, प्रीलिम्स में आप जानते हैं कि आपके पास दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड द पेपर 2. पेपर 1 इज बेसिकली 200 मार्क एंड द पेपर 2 इज ऑल्सो 200 मार्क्स. सिलेबस आपके सामने दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7. इन टोटल 7 टॉपिक्स यू नीड टू कवर और द 7 सब्जेक्ट्स यू नीड टू कवर. बट देखिए 7 सब्जेक्ट्स ना बहुत लंबे चौड़े हैं, क्योंकि जितना छोटा सिलेबस है उतने ही वास्ट एरिया से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. आपको बहुत अच्छे से मालूम है. देवन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. नेशनल मतलब भैया इंडिया में से कुछ भी, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कुछ भी, और वो करंट न्यूज होनी चाहिए. सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. हर किसी में देखिए, अगर आप देखेंगे, दो इन केस ऑफ दिस दिस एंड दिस there is a full stop, but in these two area, polity and governance and the economics part, they have mentioned the etc. and I'm telling you this is the main syllabus of the examination. main मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो पूरे सिलेबस इन 2 पॉइंट में वो एटसेट्रा है, बिकॉज एटसेट्रा में से इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे टॉपिक रिलेटेड है जिनमें से कुछ भी पूछ डालते हैं. अब देखिए यहाँ पे लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. बट क्वेश्चन बैंकिंग में से भी आते हैं, कैपिटल मार्केट में से भी आते हैं, फॉरेन ट्रेड में से भी आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में से भी आते हैं. सब में से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ डालता है आपसे. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो यानी कि सिलेबस की लेंथ पे मत जाओ, वास्टनेस देखो कितना वास्ट सिलेबस है, एंड दैट यू विल गेट टू नो when you see the questions also. So what is the point? First of all, you need to see the syllabus, and then you need to see the kind of questions asked by the UPS and the area they've been covering as a part of it. Getting? अब देखिए सेकंड जो है उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड द बेसिक न्यूमरेसी. और यहाँ पे भी भाई साहब ने क्या करा है, यूपीएससी वालों ने एटसेट्रा लिख के छोड़ दिया और क्लास 10 लेवल छोड़ दिया. बट मान के चलिए क्लास 10 लेवल जो है उससे कहीं ज़्यादा है. बट येस, देयर इज अ वन गुड थिंग अबाउट इट, as the people from arts background are not really good in terms of this particular mathematics and the other, because they hardly do this kind of things as a part of their graduation and post graduation. That's why you can say UPSC is saying that paper 2 is only the qualifying in nature. That means you need to score only 33% marks here, and the cutoff will be, or the selection will be dependent upon the general studies, or you can say paper 1. So that is the main deciding factor, and you know this thing, cutoff is normally around 50% if you talk about +5 -5% here. So normally between 90 to 110, that is the normal cutoff level of the UPSC paper 1. That means paper 1 में 50% भी अगर आप कर लेते हैं, that is more than sufficient. ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका प्रीलिम्स का. अब देखिए जब आप मेंस की एग्जाम बात करते हैं तो मेंस में यू हैव 2 पेपर्स विच आर कंपल्सरी दैट यू नीड टू अटेम्प्ट. One is your qualifying paper. It's about English, the basic English they will ask. Comprehension of given passages, precis writing, usage of vocabulary, short essay. आपको मैं बताऊं हिंदी मीडियम के बहुत सारे कैंडिडेट इस पेपर में रह जाते हैं. क्यों? Because they hardly prepare for it, and I'm telling you, in this also you need to score around 25% marks. अगर इतने नहीं आएंगे, so they will not evaluate you for the GS paper. तो इसलिए मान के चलिए those people who are from Hindi background, they need to prepare for this also. And those people from English medium and they're being appearing for the examination, they also need to prepare the language paper. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश तो देखिए जो मीडियम से वो तो पास कर जाएगा, but when it comes to the language paper, the people are even not able to recall, and they're not able to write properly the Hindi and the regional language, because सारी की सारी हमारी जो एजुकेशन है वो तो इंग्लिश में ही हो रही है देश के अंदर. ठीक है, सो इन दिस केस कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसी राइटिंग, यूसेज वोकैबुलरी सेम थिंग है. बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम करता है ना, वो कहता है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और यू कैन से फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. तो ये मान के चलिए जो इंग्लिश मीडियम से है उसको थोड़ा बहुत ध्यान इस पेपर पे भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लैंग्वेज पेपर रह जाता है, दे विल नॉट इवैल्यूएट योर फर्दर पेपर. डू रिमेंबर अबाउट गेटिंग. आगे बढ़िए. अब देखिए जो पेपर है यूपीएससी के हमारे मेंस के, आप जानते हैं पहला पेपर जो हमारा एसए का होता है. The second paper is General Studies 1. Under that, what is the heading of the paper? Indian Heritage and Culture,
history and geography of the world and society. Paper 2 is about governance, constitution, polities, social justice, IR. Paper 3 is about technology, economic development, my area, biodiversity, environment, security, disaster management. And the paper 4 is about ethics, integrity, and aptitude. And then you have two optional paper, and an optional you can choose from a list of 26 optional subject, including lot of languages you can choose. Hindi, English, Urdu, whatever language is being given, that you can simply choose and you can simply go for it. ठीक है, तो कहने का मतलब है कितने पेपर हो गए आपके, ये पहले वाले दो तो क्वालिफाइंग है, and then 250 marks of paper, you can say how many, 1 2 3 4 5 6. So when you multiply this with 6, how much it is 1500. Okay, so 250 and then 1000 and then these two, that means there is a one more which we have left, the option one more. So in total you have 1750 marks that will decide your selection to the interview process. Getting? और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, that you know it is of 275 marks. Okay, so that means from 2025 the final selection will be provided. अब देखिए, सबसे बड़ा जो सिलेक्शन वाला पार्ट है वो है हमारा, इसमें वेटेज है हमारा जीएस के, क्योंकि 4 पेपर जीएस के और एक हमारा एसए के पेपर है. आई एम टेलिंग यू द पीपल आर ओनली रनिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ कवरिंग द जीएस पार्ट, ओके, एंड द ऑप्शनल, बट दे हार्डली बॉदर अबाउट यू नो द राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए they are hardly bothered, and that's why you can say as the people are not really good in terms of writing, that's why they're being scoring less, and a lot of people are even missing the bus and they're not able to appear even in the list of the qualifying candidate for the interview purpose. तो आने वाले कुछ दिनों में I am going to announce one thing. Under that, you know, I am going to initiate a full-fledged test series, because I recently got a very good support, you know, from one of the person who used to run the test series earlier, and he was the leader in market in terms of running the best test series. And I'm telling you, with the help of this, again we can start a very good, because देखिए होता क्या है, मैंने देखा है, but again the point is what, if I'm going to start that, if the things will be compared completely fine, then obviously I will and my team will be able to only admit few number of people, because obviously lot of people means you will compromise with the quality. Okay, so that I'm going to announce very soon in the upcoming days कि क्या टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम होगा, कैसे कैसे उन चीज़ों पे हम बात करेंगे, वो सारी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. अब देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये तक नहीं मालूम होता है कि हमारे पास इंटरव्यू का भी सिलेबस है. तो यूपीएससी इंटरव्यू का सिलेबस भी आपको देते, दैट इज व्हाट द कटिंग आई एम एबल टू गेट फ्रॉम द नोटिफिकेशन ओनली. और देखिए साफ साफ लिखा है, the candidate will be appeared by a board who will have before them a record of candidate's career. अब स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर क्या मेरे बैकग्राउंड के बारे में, उनके बारे में उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है? यस, ये हैव, दैट्स व्हाई दे बीइंग आस्किंग यू टू फाइल द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, एंड देन दे विल सिंपली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट. दे हैव सिंपली मेंशन्ड the candidate will be asked question on matter of general interest. The object of the interview personality test is to assess the personality's suitability of the candidate for a career in public services by a board of competent and unbiased observers. The interview personality test is intended to judge the mental caliber of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only intellectual qualities but also social traits, interest in current affairs, and some of the qualities to be judged are mental alertness, critical power of assimilation, clear and logical extension, and so on. The technique of the interview personality is not that of a strict cross-examination, but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental quality of the candidate. ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी. और रही बात इसकी, ये आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए, बिकॉज नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड यू नो इन योर एग्जामिनेशन एंड मोर ओवर इन योर रिटर्न पेपर. तो वो ऑलरेडी रिटर्न आपका हो चुका है. ठीक है, वो सब हो चुका है. दो पेपर हैं जिसके थ्रू यूपीएससी कैंडिडेट को इवैल्यूएट करता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, एंड दैट इज व्हाट, व्हेन यू राइट, दैट इज योर एस्से पेपर एंड देन योर इंटरव्यू. क्योंकि देखिए दो ऐसी जगह हैं जब आपको लिखने के लिए बोला जाता है इन अ काइंड ऑफ अ डिटेल्ड मैनर, एंड व्हेन यू बीइंग सिंपली आस्क्ड क्वेश्चन देन दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी. तो मान के चलिए ये दो चीजें आपकी पर्सनैलिटी को जज करवाती हैं यूपीएससी के द्वारा कि आप रियलिटी में हैं कैसे.
एंड अकॉर्डिंगली दे विल सिंपली गो फॉर द सिलेक्शन पर्पस एंड फर्दर। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पे है वो क्या है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है आपका मेंस का सिलेबस। अब देखिए मेंस के सिलेबस में क्या किया है, हमें 4 जीएस के पेपर दिए, 1 2 3 4, 4 पेपर दिए हैं। इन 4 पेपर में सारी जगह टॉपिक्स हमें लाइन से लगा के दे दिए हैं, विच इज बीइंग हाईली आई वुड से इन अ अनअरेंज्ड वे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए नॉर्मली मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाउ यू नीड टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स इन माय अर्ली वीडियोस ऑन माय चैनल, बट हियर आई एम गोइंग टू टेल यू ओवरऑल कि हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है कि जो भी यूपीएससी के आपके टॉपिक्स हैं मेंस एग्जामिनेशन के, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। सो इन टोटल वी हैव अराउंड 13 सब्जेक्ट्स विच यू पीपल नीड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि 13 केवल जीएस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एसए की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी your the optional paper also. So these 13 subjects that you need to prepare are having so many subtopics. ठीक है, तो सिलेबस अगर प्रॉपरली अरेंज्ड हो तो उसको कवर करने में आसानी रहती है, एंड इफ यू नो कि विच सब्जेक्ट इट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, आपको सिर्फ मुझको एक मेल करना है, एंड माई ईमेल एड्रेस इज प्रतीक गुप्ता 2001@gmail.com, एंड देयर यू नो आई विल शेयर द कॉपी ऑफ सिलेबस विथ यू। जो मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं कि वो सिलेबस की कॉपी है क्या। नाउ सी दिस थिंग, दैट इज द कॉपी ऑफ द सिलेबस विच आई वांट टू शेयर विद यू पीपल। अब देखिए यहां पे आपको मिलेगा व्हाट वी हैव डन, वी हैव सिंपली प्रोवाइडेड दी सिलेबस इन दिस वे। तो पहला टॉपिक है आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, अंडर दैट व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड, वी हैव द subject name and then we have all the topics which have been given as a part of a syllabus। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने सोचा कि मैं कल्चर को कंप्लीट करूंगा, तो आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक उठाते जाइए और उनको कंप्लीट करते जाइए। सो वंस यू विल कंप्लीट इट, यू विल सिंपली टिक इट, और उससे क्या होगा आपको, यू विल गेट टू नो कि हाँ मेरा सिलेबस एक एक करके कंप्लीट हो रहा है। सेकेंडली इफ यू सी द सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, सो अंडर दैट you need to simply go for this thing and you will be able to complete it one by one। तो आपको पता है स्पेसिफिकली मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। The third part is geography of the world, so you need to know what I need to read in the geography। तो देखिए हर किसी में आपको टॉपिक और सब टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए गए। फोर्थ इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ इज अबाउट गवर्नेंस एंड पॉलिटी, सिक्स इज अबाउट सोशल जस्टिस, सेवंथ इज अबाउट आईआर, एट इज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नाइन, सो सबसे लंबा सिलेबस जो आपको मिलेगा वो इकोनॉमिक्स का मिलेगा। इन टोटल 19 टॉपिक्स दैट वी हैव वी नीड टू कवर। कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैं आपको आई बटन में आई विल सिंपली मेंशन द दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट दिस वीडियो यू नीड टू फॉलो टू नो दैट वे हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी 9th वन, 10th इज एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, 11th इज सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देन 12th इज इश्यूज ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इन टोटल 16 हो गए। देखिए हमारा जो एग्जामिनेशन है ना यूपीएससी का, टफ नहीं है, ये लेंदी है, क्योंकि अगर 13 सब्जेक्ट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं जीएस के, एक प्रिपेयर करना है मुझे एसए, एक करना है मुझे, अगर मैं इंग्लिश मीडियम से हो तो मुझे हिंदी का पेपर प्रिपेयर करना है, एंड देन 2 पेपर आई नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल। सो इन टोटल 17 एरियाज आई नीड टू कंप्लीट। और नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर बीइंग गिविंग 1 ईयर फॉर द प्रिपरेशन पर्पस। तो अगर आपके पास 365 डेज हैं and you need to cover almost 17 areas, so do remember you have around 21 to 22 days, that means you only have 3 weeks to complete each and everything, जिसमें आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको सारी चीज़ों को 1 by 1 अच्छे से रिवीजन भी करना है। तो मान के चलिए इट्स नॉट समथिंग विच इज ईजी गेम, इट्स अ लेंथी गेम, एंड मोर ओवर यू नीड टू बी रेगुलर टू योर स्टडीज। अगर रेगुलर हैं तो चीज़ें हो पाएंगी, और नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। इसमें आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मैगजीन्स, पता नहीं 50 चीज़ें हैं, और टॉपर्स तो पता नहीं कितना कुछ बचा रहते हैं, बता देते हैं, उससे बेचारे स्टूडेंट्स हमारे और कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट हैपेंड एज द टॉपर्स आर बीइंग गोइंग टू when they're being taking various sessions and all, they're being simply telling even a single thing which they hardly refers once as a part of the preparation thing, and what the candidate got to believe, अरे हाँ इसने करा है तो मुझे भी करना है। So they basically start referring, and that leads to lot of unnecessary wastage of time। ध्यान रखना है एक सब्जेक्ट के लिए there is only one source you need to refer। अगर वो करेंगे then you will be able to do much better in comparison to the other candidate।
ठीक है, चलिए आने वाले डेज में और टॉपिक्स के लिए हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, एंड डू रिमेंबर इफ यू वांट द सिलेबस कॉपी देन प्लीज मेल मी ऑन दैट ईमेल एड्रेस. I will simply share the copy of syllabus with you so that you will be able to cover things in an easy and comprehensive way. चलिए, take care and bye bye.